Hello everyone, students. Today we are going to study the next chapter of the physical chemistry. इसका नाम है electrochemistry. So electrochemistry, this chapter is very important because it is having the good weightage of marks for every exam. Okay. Now, what is the meaning of the term electrochemistry? The name itself suggests that the word electro, it stands for electric energy, and chemistry, you know that it is all about the chemical reactions. So क्या होता है electrochemistry? It is the branch of chemistry that deals with the study of interrelationship between electricity and chemical changes. So ये है definition of electrochemistry. It is a branch of chemistry that deals with the study of interrelationship between the electricity, or we can say here electric energy, and the chemical changes, means here the chemical energy. ओके तो इन दोनों के बीच में क्या है रिलेशनशिप, इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील करता है. सो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट डील्स विद द टू, यू नो, इट डील्स with the two important aspects. नंबर वन, जहां पे होता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ये है इसका पहला वाला एस्पेक्ट. कन्वर्जन जहां पे होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी, और वी कैन से हियर केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस. इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रो means again electric current, and the word lysis here is nothing but the breakdown. For example, अगर हम लोग यहाँ पे कराएंगे electrolysis of water, then we will get here hydrogen and oxygen as the byproducts. So here we can say it is nothing but the electrolysis. Lysis means breakdown. Electro मतलब यहाँ पे आएगा electric current. तो ये है यहाँ पे पहला important aspect, जिसको हम लोग बोल सकते हैं electrolysis. Now you know that the chemical like a sodium hydroxide, यहाँ पे हमें जो भी मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड we can get here by the electrolysis of brine. brine क्या होता है? BRINE, brine. It is nothing but the 10% solution of NaCl. अगर हम लोग इसका करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस तो हमें यहाँ पे मिलेगा NaOH. Many important chemicals are there like NaOH, fluorine, chlorine, then other chemical compounds. They can be obtained by the method of the electrolysis. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, I will say better here कि they can be obtained from the electrochemical process, not along the electrolysis only. तो NaOH, you know that NaOH is mostly used in the soaps, detergents, as well as in the manufacture of papers. तो ये सारे मतलब प्रोडक्ट्स में NaOH का यूज होता है, एंड ऑब्वियसली दिस NaOH कैन बी ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इसके अलावा आपको पता है व्हाट इज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है?
अभी आपको पता आहे की बेंटेक्स, तुम्हाला माहिती आहे बेंटेक्स दागिने कसे असतात. बेंटेक्स आपण बघितलेले पण आहे की 1 ग्रॅम सोन्याचे दागिने किंवा ज्याला आपण म्हणतो बेंटेक्स. तो बेंटेक्स यहाँ पे क्या होता है? इट इज द सेम मेथड दैट इज नथिंग बट नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इट इज द मेथड ऑफ गिविंग द लेयर of the more resistant metals like gold, silver on the base metal like iron. That is called as the electroplating. ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे? We have to give the layer of one metal on the surface of other metal by the method of electrolysis. तो इसमें क्या आता है? Obviously, it also includes the method that is known as electroplating. Electroplating is the method of giving the layer of one metal on the surface of other metal. That is known as the electroplating. Okay. It, generally it is done for the attractive appearance of the new metal. That is, I mean the new layer which get formed. तो हे जे आहे that is known as the electroplating. You know that one more method is there that is known as electro refining. You know that in the metallurgy process there are different steps are there. Finally whenever we are getting impure metal, तो उस impure metal को purify करने के लिए जो तरीका हमने यूज किया था आपको याद होगा, for the purification of copper. For the purification of copper, the method we are applying, it is nothing but the electro refining. तो what is refining here? Refining का मतलब होता है purification. Okay, whatever impure metal we are getting, तो उस impure metal का हमें करना होता है purification. That is nothing but known as electro refining. Again, electric current is used here. That's why it is known as electro refining. Refining मतलब होता है purification. So we can see this. यहाँ पे ये है इसका एक important aspect. और बहुत सारे केमिकल्स जो है दे कैन बी ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस. आपको शायद पता होगा फ्लोरीन इज द नॉन मेटल. इट कैन बी ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. देन द मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, दे कैन बी ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रोलिसिस. सो इन दिस वे इलेक्ट्रोलिसिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. जब भी यहां पे होगा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, ये जो है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी पर. इसका मतलब क्या है यहां पे? देखिए यूजुअली यहां पे क्या होगा, सपोज आई विल ड्रॉ द डायग्राम हियर. ओके, सपोज दिस इज द फ्लास्क. देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, and the electrode which is connected to the positive end of the battery, ये है यहाँ पे प्लग की, ये है बैटरी के लिए सिंबल. हम लोग यहाँ पे E यूज करेंगे जो होता है बड़ा वाला, इसके लिए हम दिखाएंगे पॉजिटिव. जो है छोटा वाला एंड यहाँ पे होता है निगेटिव. ये है प्लग की और ये है पूरा का पूरा सर्किट. यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे हमें जो लेना पड़ेगा ये रहेगा इधर का सॉल्यूशन. रिमेंबर दिस सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ देर बाद. फिलहाल अभी आपको बस इतना ही समझना है कि समझो अगर हमने यहाँ पे लिया है सॉल्यूशन और हमने यहाँ पे लिया है NaCl. इट इज इन द फ्यूज्ड स्टेट. फ्यूज मतलब मोल्टन स्टेट में अगर हमने यहाँ पे NaCl को लिया तो यहां पे क्या होगा? सबसे पहली बात कि जो है यहां पे ये रॉड्स, दीज रॉड्स आर जनरली मेड अप ऑफ अ ग्रेफाइट. ये होते हैं ग्रेफाइट से बने हुए रॉड्स. तो ग्रेफाइट यू नो दैट इज द ओनली नॉन मेटल. इट्स अ इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन व्हिच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट. सो मोस्टली ग्रेफाइट हम लोग यहां पे यूज करेंगे. द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी is known as anode. तो यहां पे है एनोड पॉजिटिव. और ये जो है दूसरा वाला रॉड यहाँ पे ग्रेफाइट का जो हमने कनेक्ट किया है निगेटिव एंड को, इसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे एज अ कैथोड. सो यहाँ पे ये क्या है? निगेटिव. रिमेंबर
दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। देखिए ये है बैटरी, ये है प्लग की। जैसे ही हमने यहाँ पे प्लग की में की को पुट किया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड द चार्ज इट विल फ्लो फ्रॉम द वायर, इट विल गो टू द एनोड। फिर यहाँ पे NaCl का हो जाएगा डिकम्पोजिशन, NaCl का हो जाएगा डिसोसिएशन। सो दिस NaCl it will get dissociate into Na plus and Cl minus। ठीक है, Na plus is nothing but a cation and Cl minus यहाँ पे है anion। Na plus जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, इट विल ऑब्वियसली माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड। देखिए अभी यहाँ पे Na plus आयन से सराउंड हो जाएगा पूरा कैथोड का सरफेस। सो एट कैथोड व्हाट विल हैपन, एट कैथोड क्या होगा यहाँ पे Na plus इट विल गो टू कैथोड। तो Na plus यहाँ पे जो है क्या होगा, इधर आपको पता होगा। कैथोड से पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा एनोड का रिएक्शन ताकि आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। सो आई विल राइट हियर द रिएक्शन एट एनोड फर्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या होता है एनोड पे, ये जो है यहाँ पे एनोड, एट दिस एनोड Cl माइनस आयंस विल गो, Cl माइनस यहाँ पे आएंगे, Cl माइनस कैंस। तो Cl माइनस आयन जो है दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन हियर एंड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल क्लोरीन एटम। Cl minus ion will lose the electron to form the neutral chlorine atom। इलेक्ट्रॉन Cl माइनस यहाँ पे आके लॉस किए तो यहाँ पे फॉर्म हुआ न्यूट्रल क्लोरीन का एटम। इस तरीके से दो क्लोरीन के आयंस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये गैसियस स्टेट में बाहर आ जाएगा। सो इधर क्या हुआ है प्रोसेस, इधर हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आपने देखा है प्रीवियस ईयर में इन द चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन द प्रोसेस which involves the loss of electron is known as oxidation। तो इधर क्या होगा एनोड पे, यहां पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो देखिए एक Cl माइनस आयन जो था इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, फिर यहां पे बना एक क्लोरीन का एटम। ऐसे ही और एक रिएक्शन होगा तो फिर दूसरा जो यहाँ पे एटम होगा क्लोरीन का, ये यहाँ पे ऐड होने के बाद आपको इधर Cl2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, सो वी इन दिस वे वी कैन से एट एनोड देयर इज अ लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन जो गैस फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये बबल्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा और ये प्रोड्यूस होगा एनोड पे। एनोड पे यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। Cl माइनस ने यहाँ पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। क्या होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का, दिस इलेक्ट्रॉन्स यू नो दैट डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट का है वो हमेशा होता है फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज ऑलवेज रिवर्स। सो इलेक्ट्रॉन जो है ये अभी इधर हो जाएंगे माइग्रेट, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको ब्लू वाला, ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएंगे, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। अभी क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कैथोड पे, अभी देखिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे Na प्लस आयन जो है यहाँ पे, दिस Na प्लस आयन दे विल गेट द इलेक्ट्रॉन एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सोडियम। ऑब्वियसली देखिए ये जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ सोडियम, ये है न्यूट्रल स्टेट में। यहाँ पे हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अभी देखिए किसी भी रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। अभी मैंने बोला आपको कि ये यहाँ पे हमने बस एक ही रिएक्शन दिखाया है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 2 एंड देन Cl2 यहाँ पे फॉर्म होता तो इसकी यहाँ पे जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे Cl2 फॉर्म हुआ है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन 2 लॉस हुए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 ही गेन होंगे, तो यहाँ पे ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्वाइस सोडियम यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इन दोनों रिएक्शंस को आपको ऐड करना होगा, फिर आपको मिलेगा नेट रिएक्शन। सो जो यहाँ पे रिएक्शन होगा नेट रिएक्शन तो कुछ इस तरीके से होगा, ट्वाइस Na प्लस ये की है एक्वस प्लस 2Cl माइनस इट इज आल्सो एक्वस। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हो जाएंगे कट
बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द एरो। फिर यहां पे फॉर्म हो जाएगा यस ट्वाइस Na प्लस Cl2, ऑब्वियसली सॉलिड में आएगा, ये रहेगा इन द गैसियस स्टेट। इन दिस वे ओवरऑल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, दैट वी कैन से। ओके, दिस इज जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू। अभी देखो ये जो रिएक्शन है ये तब तक चालू रहेगा जब तक हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम लोग स्टॉप कर देंगे रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे ये जो रिएक्शन है ये है नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction. So the process, now I am going to write the definition of electrolysis here. Electrolysis, the process in which the non-spontaneous redox chemical reaction is made to occur by supplying electric current is called as electrolysis. The process in which non-spontaneous redox chemical reaction is made to occur by supplying electric current is known as electrolysis. Okay, so ये है हमारा पहला एस्पेक्ट जिसे हम लोग कहेंगे कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग आएगा, दे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी इसमें आएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट एस्पेक्ट। ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पे निकाला है इट जस्ट ओनली फॉर योर एग्जांपल। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस डायग्राम, बट बिफोर दैट आई जस्ट थिंक दैट यू शुड नोट डाउन दिस थिंग्स इन योर नोटबुक। नाउ द सेकंड इज एस्पेक्ट यहाँ पे जो है वो है conversion of chemical energy into electric energy। स्टूडेंट्स आपको पता है since the so many years we are using the dry cells at our homes। देखिए when we were in the child age at that time there were no more TVs, तो टीवी वहां पे इतने कॉमन नहीं थे। तो क्या था वहां पे, there were transistors, radios, वॉकमैन were there। तो जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं हमेशा ड्राई सेल। You know that even in the watches also, watch जो होता है wrist watch या फिर जो हम लोग लगाते हैं वॉल पे, तो ये जो होते हैं इनमें क्या होता है, there is the presence of dry cell। This dry cell ये कैसे वर्क करता है, how actually the working of the dry cell takes place। Dry cell it is known as a dry cell because there is no liquid solutions are used। Okay, तो whatever the electrolytes we are using here they are nothing but present in a dry condition, that's why it is known as a dry cell। So in this dry cell there is a chemical reaction that takes place, and because of this chemical reaction there is a production of electric current। yes, so this is the second aspect here, conversion of chemical energy into electrical energy। तो यहां पे केमिकल रिएक्शन जो भी होगा ड्राई सेल में, इस वजह से क्या होगा, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ करंट यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट करंट वी कैन यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। आई मीन फॉर प्लेइंग द, अभी आजकल तो मोबाइल का जमाना है ना, तो आपको शायद पता नहीं होगा, बट इफ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल टेल यू अबाउट दिस आल्सो।
ओके, तो दिस इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो जनरली इन द बैटरीज, बैटरी जो भी होती है, अभी बैटरी में भी टाइप होते हैं, बैटरी सेल्स, there are two types, primary cells, secondary cells. We have to go in details also. But right now आपको बस इतना ही समझना है कि जो भी होती है बैटरीज, इसमें क्या होता है, वहां पे होता है केमिकल रिएक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ or there is a production of electric energy. I will write here electric energy is get produced by the help of chemical reaction. लेकिन ये जो होता है यहाँ पे रिएक्शन जो होगा, ये है रिडॉक्स रिएक्शन और ये है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई बंद कर दिया, रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाएगा. लेकिन ये जो है सेकेंड वाला एस्पेक्ट, बैटरीज में क्या होता है, एक बार अगर हमने बैटरी लगा दी तो वो अपना काम कर रही होगी. You know that in the vehicles also, in the automobiles we are using the various kinds of batteries, you know that जिस पे हम लोग ऑपरेट करते हैं AC, हेडलैम्प या फिर म्यूजिक सिस्टम. तो ये सब हम लोग यहाँ पे करते हैं ऑपरेट, और वो जो होते हैं ऑपरेट, ये भी होते हैं बिकॉज ऑफ द बैटरी ओनली. So in the batteries chemical reactions takes place, and because of this chemical reactions there is a production of electric energy, it will takes place. लेकिन यहाँ पे ये जो होगा रिएक्शन, ये होगा स्पॉन्टेनियस. और याद रखिएगा इधर भी रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है. पिछले साल रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हमने देखा था डैनियल सेल के बारे में. ओके, तो डैनियल सेल अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक मेटल present in a solid state. Okay, it will react with, yes, Cu2 plus ions which are aqueous. Then there is a formation of Zn2 plus aqueous, and then there is a formation of Cu solid as well. यही है उसका नेट रिएक्शन जो होता है डैनियल सेल में. पिछले साल आपने देखा होगा डैनियल सेल. अगर नहीं देखा है तो अभी भी आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि डैनियल सेल अगर आपको समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक विल बी वेरी इजी फॉर यू. नाउ सी क्या होता है डैनियल सेल में. तो यहाँ पे है जिंक का रॉड. एक्चुअली जिंक रॉड जो होता है प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Zn2 प्लस जो कि फॉर्म होता है इन एक्वस स्टेट. इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसको हम लोग और एक नाम देते हैं, also known as a de-electronation. It is also known as a de-electronation. De means to remove. इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव होता है और ये होता है एनोड पे. यहाँ पे याद रखिएगा एनोड होता है, लेकिन यहाँ पे जो एनोड होगा ये होता है निगेटिव. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने देखा एनोड था पॉजिटिव, लेकिन इस टाइप के सेल में बैटरीज में क्या होता है एनोड, इट इज नथिंग बट हैविंग द नेगेटिव चार्ज. जिंक रॉड इट विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Zn2 plus ions. These 2 electrons they will migrate from the external circuit, they will go to copper. तो यहां पे क्या होगा, एंड कैथोड. कैथोड यहां पे याद रखिएगा होगा पॉजिटिव कॉपर. Cu2 plus ions जो होंगे solution में, you know that copper rod, it is deep in the solution of copper sulfate. It is known as a copper half cell. Zinc rod deep in the solution of zinc sulfate, it is called as a zinc half cell. And these two half cells are there. They are connected externally by the help of metallic wire and internally with the help of the salt bridge. डायग्राम देखिए एक बार. तो यहाँ पे क्या होता है, Cu2 प्लस जो आयन है कहां से आएंगे, दे विल कम फ्रॉम द कॉपर सल्फेट. जो भी रहेगा CuSO4 इसका हो जाएगा डिसोसिएशन. तो CuSO4 जो है ये हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा Cu2 प्लस आयंस को और फॉर्म करेगा SO4 2 माइनस आयंस को. तो ये जो है Cu2 प्लस के आयंस ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा. इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, ऑब्वियसली जिंक का जो रॉड है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे थ्रू द एक्सटर्नल वायर दे विल कम टू द कॉपर.
and at copper Cu2 plus ions plus 2 electrons there is a formation of neutral copper. ये है aqueous state में, ये है यहाँ पे present in a solid state. क्या हुआ यहाँ पे? इधर हुआ है the process of reduction. It is also known as electronation. काफी आसान है. अगर हम लोग बोलते हैं D मतलब to remove, what is the meaning of the word here? Electronation, इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है. सो ओवरऑल अगर आपने इन दोनों को ऐड किया, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कट, आपको ये मिलेगा नेट रिएक्शन. लेकिन ये रिएक्शन जो है ये है स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एक बार अगर आपने सेल को फॉर्म कर दिया, सेल अपना काम करता रहेगा. इट विल वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट डिस्टर्बेंस प्रोवाइडेड इफ केमिकल्स आर प्रेजेंट. ठीक है. तो क्या होता है? द प्रोसेस और यू कैन से हियर द सेल्स इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस, मैं यहां पे ये कहूंगा द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. Such a kind of a cells, they are known as a galvanic cell. They are known as a galvanic cell. इस टाइप के सेल्स को हम लोग बोलते हैं galvanic cell, और also they are known as a voltaic cell. याद रखिएगा ये जो नाम है galvanic, ये आया है from the name of the scientist जिसका नाम था लुइगी गैल्वानी. लुइगी गैल्वानी. और ये जो है अलेक्जेंडर वोल्टा, तो उनके नाम से यहां पे आया है वोल्टाइक सेल. सो गैल्वानिक सेल और जो होते हैं वोल्टाइक सेल, द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, दे आर नोन एज अ गैल्वानिक सेल. ओके. सो ड्राई सेल में जो भी रिएक्शंस होंगे हम तो जानेंगे इनके बारे में. डैनियल सेल भी हम लोग एक बार देख लेंगे डिटेल्स में. नॉट टू वरी अबाउट दैट. अभी जो है इंपॉर्टेंट 2 एस्पेक्ट्स, अभी ये शायद आपको समझ में आए होंगे. नाउ व्हाई द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज सो इंपॉर्टेंट. क्यों पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को? यू नो दैट ये जैसे हम देखा कि डैनियल सेल यहाँ पे है, ड्राई सेल है, देयर इज आल्सो लेड, यू नो देयर इज आल्सो नोन एज अ लेड एक्यूमुलेटर, ये भी होता है. तो ये सारे जो सेल, इसके अलावा होता है फ्यूएल सेल. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फ्यूएल सेल के बारे में, तो फ्यूएल सेल इज पोल्यूशन फ्री. दीज आर द सेल्स, दे आर पोल्यूशन फ्री. दे आर नॉट पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट एट ऑल. ओके. इसके अलावा दे आर मच मोर एफिशिएंट. दे आर गिविंग मोर आउटपुट देन द इनपुट. They are more efficient than the conventional source of energy. That's why it is very necessary to study the electrochemistry, so that in the future we can use these electric appliances for the new arising technologies. Okay, so that is the purpose behind the study of electrochemistry. So यहाँ पे आपको लिखना है डेफिनेशन. द सेल्स इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, दे आर नोन एज गैल्वानिक सेल्स और वोल्टाइक सेल्स. सो दिस 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर देयर. इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल्स में. ओके. एंड दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स केयरफुली इन योर नोटबुक. ओके. तो अभी हमने देखा सेल चाहे कौन सा भी क्यों ना हो, वेदर इट इज अ गैल्वानिक सेल और इट मे बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देयर इज रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस. क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन? यस, इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन. वैसे तो हमने देखा था प्रीवियस ईयर में, थोड़ा सा इसे कहते हैं रिवाइज, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म oxidation?
the process which involves number 1 loss of electrons or number 2 increase in oxidation number, it's called as oxidation. ठीक है, the process which involves loss of electrons or increase in the oxidation number is called as oxidation. Reduction, the process which involves gain of electrons, or we can say here decrease in oxidation number, is called as reduction. Now the next term is here इससे पहले हम जानेंगे what is mean by oxidizing agent. So oxidizing agent, yes, the substance, it may be atom, ion or molecule, whatever, the substance which brings about oxidation of others but itself get reduced is called as oxidizing agent. ठीक है, एंड क्या होता है फिर reducing agent? The substance which brings about reduction of other but itself get oxidized are called as or is called as reducing agent. What is the meaning of the term redox reaction? Redox reaction, yes, the process in which oxidation and reduction takes place simultaneously. It's called a redox reaction. So these are the 5 terms. Now let's see some examples for this so that you can understand all these terms. देखिए, जो हमने एग्जाम्पल लिखा था डैनियल सेल में, मतलब जो रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखा था, जिंक सॉलिड combines with Cu2 plus aqueous, it gives Zn2 plus aqueous plus copper solid. You know that अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जिंक का है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन अनकम्बाइंड फॉर्म इज ऑलवेज 0. तो यहाँ पे भी जिंक जो है जिंक यह है अनकम्बाइंड फॉर्म में, तो इसके लिए वैल्यू आएगा 0. कॉपर का यहाँ पे आएगा +2, जिंक का यहाँ पे है +2 और कॉपर का वापस यहाँ पे है 0. देखो यहाँ पे
जिंक पहले 0 था, अब है +2, यहां पे हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहां पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है ऑक्सीडेशन। लुक एट दिस हियर, ठीक है। अगर हम यहां पे जानेंगे तो यहां पे और भी चीजें आएंगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इनके बारे में हमें नहीं सोचना है। जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस हम वही यहां पे समझेंगे। देखो अभी जिंक ने यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो यहां पे हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ इन केस ऑफ कॉपर पहले था +2, अब है 0, क्या है इधर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और वी कैन राइट हियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ है इधर, इधर हुआ है रिडक्शन। सो Cu2+ is get reduced to Cu, zinc is get oxidized to Zn2+, in this way we have to say। अभी देखिए जिंक का यहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन Zn2+ में, इसका मतलब क्या है, वो खुद हुआ है ऑक्सीडाइज, इसका मतलब ये यहां पे क्या है, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर 2+ का यहां पे हुआ है रिडक्शन, मतलब वो खुद रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब Cu2+ ने कॉपर का क्या कराया है, सॉरी जो है यहां पे Cu2+, इसने जिंक का क्या कराया है, इट सेल्फ गेट रिड्यूस मैंने बोला है, सो इट इज नथिंग बट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cu2+ यहां पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जिंक यहां पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक हियर, SnCl2 प्लस FeCl3, क्या मिलेगा, SnCl3 प्लस FeCl2। क्लोरीन का चार्ज है -1 इंटू 2 -2, Sn का हो जाएगा +2, Cl का -1 है इंटू 3 -3, तो Fe का यहाँ पे है +3, Cl -1 है तो Sn का यहाँ पे है +3, Cl -1 है, -1 इंटू 2 है -2, तो Fe का यहाँ पे होगा +2। इफ यू चेक इट प्रॉपर्ली आपको वही मिलेगा। सो Sn का पहले +2 था, अब है +3, इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हुआ है इधर, यस मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। Fe का पहले +3 था, अब है +2, डिक्रीज हुआ है यहां पे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ये है यहां पे रिडक्शन। सो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। SnCl2 is get oxidized to SnCl3, अभी FeCl3 ने ये कराया है, FeCl3 का यहां पे खुद हुआ है रिडक्शन, FeCl3 यहां पे खुद हुआ है रिड्यूस। सो यस, it is nothing but the oxidizing agent. So FeCl3 is nothing but here oxidizing agent, and SnCl2 here is nothing but a reducing agent, क्योंकि SnCl2 ने क्या कराया है, यस इसने FeCl3 का रिडक्शन कराया है। इट्स ए वेरी सिंपल कंसेप्ट, जो खुद होता है ऑक्सीडाइज वो दूसरे का रिडक्शन कराएगा, जो खुद होगा रिड्यूस वो दूसरे का कराएगा ऑक्सीडेशन। इन दिस मैनर यू हैव टू रिमेंबर। सो सच अ काइंड ऑफ रिएक्शंस वी हैव टू गो in this chapter, that's why it is very important to understand these concepts properly. Okay, please note down all these things carefully in your notebook. Now let's see here the next topic, electric conduction. क्या होता है conduction? Yes, it is also known as a charge transfer. It is also known as a charge transfer, or we can say here the flow of electric current from the conductors. It is known as electric conduction. तो ये होता है दो तरीके से,
First one is here we can say metallic conduction, or we can say here metallic conductors क्या होते हैं देखेंगे हम लोग. Metallic conductors, they are also known as electronic conductors. और दूसरा यहाँ पे जो होता है, they are nothing but known as electrolytic conductors जो होते हैं, they are also known as ionic conductors. So as the name suggests, you know that generally metals में क्या होता है, there is the presence of freely moving electrons. Suppose these are nothing but the atoms here, and you know that यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको arrows, ये है arrows, और ये arrows जो है they represent the electrons. They are moving in every possible direction and they are having rapid random motion of electrons. I will write here. तो इस तरीके से किसी भी मेटल में क्या होता है, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और ये आपको जो दिखाई दे रहा है गोल गोल, ये पता है क्या है, दे आर नथिंग बट द एटम्स हियर. एरोज क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स, और जो है मेरे किए हुए सर्कल्स ये है यहाँ पे एटम्स. जनरली इलेक्ट्रॉन्स दे कैन शो द माइग्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. लेकिन अगर हमने इसी वायर के मतलब इस वायर के दो एंड्स पे, और वी कैन सी हियर कंडक्टर के दो एंड्स पे अगर हमने चार्ज अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक चार्ज, इस तरफ है पॉजिटिव, इस तरफ है निगेटिव, एटम्स तो है ही अपनी जगह पे, वो तो फिक्स. अभी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा शुरू माइग्रेशन एक ही डायरेक्शन में. देखिए आप, ये है एरोज और ये है इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है. ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है, मैंने कहा आपको, इसके लिए चलिए तो मैं सिंबल देता हूं यहाँ पे I. ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है एरो ये दिखा रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इलेक्ट्रॉन का देखिए लेकिन फ्लो कहां पे, इट इज फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड. सो आई विल राइट हियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो इन दिस वे, in case of metallic conductors, or we can say here electronic conductors, the flow of electric current takes place because of the flow of electrons. So the conductors in which flow of, या फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट flows because of flow of electrons under the influence of applied electric potential. Let me check what is the sound came from the mobile. Okay, no problem. Is called as metallic conductor, the conductor in which electric current, मैं यहाँ लिखता हूँ conducts because of the flow of electrons under the influence of applied electric potential is known as a metallic conductor. They are known as a electronic conductors. Okay, तो हमने देखा था
at the start of the lecture कि there was electrolysis of fused NaCl. Remember it's a fused, not aqueous. इसमें पानी नहीं था. तो यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे था कंडक्शन, और ये जो हो रहा था कंडक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द आयंस. ओके, इट इज नथिंग बट नोन एज अ electrolytic conductors. So the conductors in which electric current is असं म्हणू पाहिजे आपण याला, द करंट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, चलो तो कोई बात नहीं, फ्लोज because of the flow of positive and negative ions. It's called electrolytic conductors. ठीक है, जितने भी यहाँ पे है मेटल्स, ऑल द मेटल्स वो इसमें आएंगे, और यहाँ पे क्या आएंगे? मोस्टली द सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग या फिर वीक एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट्स, इनमें इनके एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे, इन द एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solutions, these are the examples of electrolytic conductors or also known as ionic conductors. okay, so इस तरीके से यहाँ पे होता है ये कंडक्शन. अभी इनमें क्या है मेन डिफरेंसेस? लेट मी चेक हियर. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इधर है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. डिफरेंस क्या है दोनों में देखते हैं हम लोग. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. द फर्स्ट पॉइंट इज हियर the conduction takes place due to the flow of electrons. Here the conduction takes place due to flow of ions. तो यहां पे आयंस के मतलब आयंस पॉजिटिव और निगेटिव जो आयंस यहां पे है ये फ्लो करेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव, आई विल से आयंस. ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस. पॉइंट नंबर 2, हियर in case of this type of a conduction, here no transfer of matter takes place. No transfer of matter takes place. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं. Here transfer, this conduction involves transfer of matter takes place. Third point is here, क्या है यहाँ पे? No chemical change is
involve chemical change is chemical change takes place, we can say here chemical change takes place. जैसे हमने देखा था in the electrolysis of fused NaCl, fused है वहां पे, it's not aqueous. तो इसमें क्या होता है, there is a formation of Na plus and Cl minus. So NaCl का हुआ था डिसोसिएशन, तो इधर क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था Na plus आयन एंड Cl minus आयन. सो इधर केमिकल चेंज हुआ है, इधर ऐसा कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है. पॉइंट नंबर 4 में क्या आएगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीज, एज द टेम्परेचर increases, resistance also increases and conduction decreases. आपको याद होगा इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट हमने देखा था बैंड थ्योरी में, व्हाट हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो ये जो है एटम्स, दिस एटम्स दे विल आल्सो हैव वाइब्रेटिंग मोशंस, दे विल गेट वाइब्रेट टू एंड फ्रो. तो उनका जो होता है वाइब्रेशन, उन वाइब्रेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में आती है दिक्कतें. सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो इजीली, दैट्स व्हाई हियर कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. So as the temperature increases, resistance also increase, conduction decreases in this case. लेकिन यहाँ पे as the temperature increases, as the temperature increases, resistance, yes, resistance decreases and conduction increases. देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे टेम्परेचर, तो आयंस को और ज़्यादा मोशन मिलेगा, देयर एनर्जी विल इंक्रीज, दे विल मोर रैपिडली माइग्रेट टूवर्ड्स द ऑपोजिट